वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। So today we are going to start the next chapter, that is chapter number 9, ray optics and optical instruments. सो बेटा इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਮਾ ਰੇ, ਐਕਸ ਰੇ, ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਰੇਡੀਓ, ਮਾਈਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ। ਸੋ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸ ਔਰਗਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੈਂਸ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਐਕਸ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ठीक है ना। सो इट इज़ द विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट इन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम विच हैल्प अस टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड सराउंडिंग अस। ठीक है, सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो उस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का थोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ NCERT बड़ा वधिया गिवन, आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ठीक है, कि 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर की वेवलैंथ जी विजिबल रीजन की, ठीक है, रेंज हैगी, वेवलैंथ रेंज। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਸੈਂਸ ਦੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਨਿਊਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਪਸਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਟਾਈਨੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬਾਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ NCERT 'ਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਨੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬਾਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ, ਆਪਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਆਪਟਿਕਸ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਰੇ ਨੇਚਰ, ਵੇਵ ਨੇਚਰ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਵ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨੇਚਰ 'ਚ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਟੂ 750 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਬਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੇ।
ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 10th 'ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਚੈਪਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੇ ਨੇਚਰ ਰੇ ਮੰਨ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਜ਼, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਵ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਲਾਈਟ ਐਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। So let us study the definition of refraction of light. Bending of light rays when it passes from one medium to another medium with different optical density. This is the refraction of light. Refraction of light ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ट्रैवल करदियां ने ठीक है। वैन दे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जिवें 10th च असीं गल कीती सी कि ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर बोथ डिफरेंट थिंग्स ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी की लाइट वास्ते मीडियम कितना संघना है ठीक है ना। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी नूं ऑप्टिकल डेंसिटी नाल नहीं तुसीं रला सकदे ठीक है ना, उहनूं इहदे नाल मिक्सअप नहीं करना। मास डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट थिंग ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਬੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਦੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਲਾਈਟ ਸਲੋਅਰ ਬੇਟਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਲੋਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ कि वो मीडियम क्या है ऑप्टिकली डेंसर। डेंसर मीनस संघना लाइट वास्ते ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम च लाइट फास्टर ट्रैवल करेगी कंपैरेबली उस मीडियम नूं असीं बोलांगे कि दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ठीक है, कि उत्थे वो लाइट वास्ते घट संघना है, उत्थे लाइट ईजीली भजी जाएगी ठीक है, फास्ट ट्रैवल करेगी। ये गल साडे दिमाग च होनी चाहिए ठीक है। सो टू मेजर हाउ वी मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम ठीक है, वट इज द क्राइटेरिया टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम? For measuring the optical density, because optical density will tell us how fast the light will travel in that medium ठीक है। optical density of a medium will tell us how fast the light is going to travel in that medium ठीक है। so optical density बारे सानू केड़ी टर्म जानकारी दिंदी है, that is refractive index of medium ठीक है, that is न्यू न्यू नाल डिनोट करते हैं। न्यू दा फार्मूला की हुंदा साडे कोल C/V, where C is the speed of light in air or vacuum। इस मतलब असी अपनी क्लास दे विच असी एयर ते वैक्यूम दे विच लाइट दी स्पीड ऑलमोस्ट सेम मान रहे हैं, दैट इज C, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक है। सो न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदे इक्वल हुंदा है ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पता चल गया ठीक है। सो देखो ये फॉर्मूला साडे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बारे असी थोड़ा जिहा ठीक है होर डिटेल च जाने ठीक है, ताकि सानू पता चल सके कि हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल अस दैट अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम ठीक है। सो देखो जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा, यह देखो C तो कॉन्स्टेंट है ऊपर ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक है। वेरी करना इन्हें मीडियम चेंज होने नाल V जिहड़ा अलग अलग मीडियम च अलग अलग होएगा ठीक है। मीडियम कोई भी हो सकता, एयर तो वैक्यूम उत्ते फिक्स है, C इज फिक्सड ठीक है। सो हुण की हैगा देखो, ਇਹਦਾ मतलब इत्थों की पता चल रहा है कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा किसी मीडियम का ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी उस मीडियम च वेलोसिटी की होएगी लाइट की घट होएगी। ਇਹਦਾ मतलब मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उत्थे वेलोसिटी घट, अगर लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम च घट आ दैन वो मीडियम की होएगा लाइट वास्ते ऑप्टिकली डेंसर संघना होएगा, ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਲ ਬੀ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल लेट अस सी, ठीक है, देखो कहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है। सो वी विल राइट फॉर ग्लास दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होंदा है, ਇਹਦੀ वैल्यू ग्लास वास्ते भर दो 1.5 इज इक्वल टू सी बाई वी, वी विल गैट v इज इक्वल टू सी बाय 1.5। डिनोमीनेटर देखो 1 तो वड्डा है, 1 तो ज़्यादा है ना डिनोमीनेटर, इट मीनस जी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास v हैगी, मीडियम केड़ा ले रहे हैं ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जी c बाय 1.5 है, मतलब c तो घट, c बाय 1 होंगी तो c के बराबर होनी, हुण डिनोमीनेटर 1 तो वड्डा है, इसका मतलब जी v की वैल्यू आ रही है c तो घट आएगी, बिकॉज डिनोमीनेटर इज ग्रेटर दैन 1। ਇਹਦਾ मतलब ग्लास ਦੇ ਵਿੱਚ लाइट की स्पीड की होएगी 1.5 टाइम्स लैस दैन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पता चल गया। सो सानू रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दसदा है कि किन्ने टाइम्स लाइट की स्पीड घट आ, लाइट की स्पीड जी वैक्यूम च हुंदी आ उहदे नाल। समझ लगी, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सानू दसदा आ कि उस मीडियम च लाइट की स्पीड किन्ने टाइम्स वैक्यूम वाली स्पीड नालों किन्ने टाइम्स घट हैगी। पता चल गया, ठीक है। सो नैक्सट देखो एक होर एग्जाम्पल, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है 2.4, सो आप पुट किया फॉर्मूले न्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, न्यू की वैल्यू 2.4 फॉर डायमंड, सो वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी सी बाय 2.4, इट इज 1 by 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। मतलब 2.4 टाइम्स घट हैगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नालों 2.4 टाइम्स घट आ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। सो न्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर मीडियम इन वैक्यूम देन वैक्यूम, वैक्यूम तो बिना कोई भी होर मीडियम ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फॉर वैक्यूम की होएगा, इट इज फॉर्मूले च पुट कर दो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फॉर वैक्यूम की होएगा बेटा, देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होंदा ना साडे कोल, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फॉर वैक्यूम निकालना है तो सी इत्थे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम केड़ा वैक्यूम, वैक्यूम बाय वैक्यूम करोगे तो सी बाय सी आ जाएगा, इट इज 1। इसका मतलब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इज 1, ठीक है। बाकी सारे मीडियम सब तो ज्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम च हुंदी है, ठीक है। सो बाकी सारे मीडियम जिहड़े आ उन्हां च स्पीड लाइट की घट होएगी, सो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू बाकी सारे मीडियम वास्ते ग्रेटर दैन 1 होएगी, लैस दैन 1 रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वैल्यू नहीं होएगी, ठीक है। इट मे बी इक्वल टू 1 बट इट इज ओनली फॉर वैक्यूम, रेस्ट ऑफ द ऑल मीडियम्स हैव रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वैल्यू ग्रेटर दैन 1। क्लीयर। चलो नो हुण मीडियम जिहड़ा आ देखो, लाइट एक मीडियम रिफ्रैक्शन च असीं पढ़िया है कि डेफिनेशन च कि लाइट जो एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च ट्रैवल करती है, इट बेंड्स, ठीक है। लेट अस सपोज क्या एक इंटरफेस है, ठीक है, दिस इज इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस मीडियम 1 इज रेयरर मीडियम, घट संघना है लाइट वास्ते, ऑप्टिकली रेयरर, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का असीं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ले लिया न्यू 1, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर का न्यू 2। लेट अस टेक दैट लाइट जी रेयरर तो डेंसर आ रही है बेटा, रेयरर तो डेंसर आ रही, दिस इज नॉर्मल, आ डॉटेड लाइन जी है ना, दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स, जिथे दो मीडियम ज्वाइन करते उन्होंने इंटरफेस बोलते, ठीक है। सो यह नॉर्मल हैगा। हुण V1 वेलोसिटी लाइट की मीडियम 1 च, V2 वेलोसिटी लाइट की मीडियम 2 दे विच हैगी, दिस इज V2 सॉरी, ठीक है। पता चल गया, ये असीं ले लिया। हुण लाइट रेयरर टू डेंसर आ रही, जदों बेटा लाइट रेयरर टू डेंसर आउंदी है, ठीक है, उदां लाइट ने किधर नूं जाना है, यह वाला पाथ फॉलो करना है जे, ठीक है, मीडियम चेंज ना हुंदा, सीधा स्ट्रेट जाना है। पर नाउ एट द इंटरफेस द मीडियम इज गेटिंग चेंज्ड, द ऑप्टिकल डेंसिटी इज गेटिंग चेंज्ड, ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी है, ठीक है। सो लाइट विल बेंड, हुण किधर नूं बेंड करेगी, दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय whether the light is coming from rarer to denser or denser to rarer. As the light here is coming from rarer to denser, then it will bend towards the normal. देखो जाना उन्हें इधर ही, पर नॉर्मल किधर है, इधर आ नॉर्मल ये वाल बेंड होगी, जाना इधर सीगा पर बेंड होगी नॉर्मल वाल बेंड होगी। क्लियर, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। सो न्यू 2 इज ग्रेटर दैन न्यू 1, ये तो सानू पता ही, आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज्यादा होएगा, रेयर का घट,
ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਨ ਦ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। वैन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, नॉर्मल हैगा, दिस इज इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स, जिथे दो मीडियम अलग हो रहे हैं, ठीक है। इथों लाइट आ रही है सेम मीडियम स्ट्रेट लाइन च आ रही है, इत्थे मीडियम चेंज होएगा, इंटरफेस ते मीडियम चेंज होएगा, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने के करके लाइट विल बेंड, ठीक है। हुण लाइट का ओरिजिनल पाथ की होना चाहिए सीगा, जे ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हुंदी अगे ते लाइट ने इधर नूं आना सीगा, पर now the as the light is traveling from denser to rarer, denser ਇਹਦਾ μ1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, μ2 rarer ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, μ1 is greater than μ2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ denser to rarer ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ bends away from the normal, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ away from the normal ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਟ bends like this, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੇਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨੰਬਰ 1, ठीक है, इंटरफेस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम इज μ1, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज μ1, दिस इज 2 μ2, दोवें बराबर नहीं है, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम है, इन्हां दी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। पर अगर लाइट अलॉन्ग दी नॉर्मल जिहड़ी आ ट्रैवल करे, अलॉन्ग दी नॉर्मल 90 इंटरफेस नाल इंसीडेंट रे जिहड़ी आ इंटरफेस दे नाल 90 डिग्री एंगल बना के, ठीक है, आवे, दैन लाइट विल गो स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेस नाल 90 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसीडेंस विल बी 0। एंगल ऑफ इंसीडेंस की होंदा है, द एंगल बिटवीन इंसीडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 है दैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसीडेंस। ये लाइट बेंड नहीं करेगी, भावें ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों मीडियम की अलग अलग है, तामी लाइट बेंड नहीं करेगी, लाइट स्ट्रेट चलेगी। पर कंडीशन की है, लाइट शुड ट्रैवल अलॉन्ग द नॉर्मल टू द इंटरफेस। सैकेंड कंडीशन जो लाइट बेंड नहीं करती, वो की हैगी आ कि एक मीडियम μ1, ठीक है, μ2 ऑप्टिकल डेंसिटी दे मतलब है ना, आप इंटरफेस ले लिया। अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 हो जाए, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, मतलब दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाए, लाइट ने ऑप्टिकल डेंसिटी को कंसीडर करना जदों ने बेंड करना। जे ऑप्टिकल डेंसिटी सेम आ तो लाइट ने कहना ये तो मीडियम अगे भी वही है, ठीक है ना, ये बदलिया नहीं मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट को दसदी है कि मीडियम हो कि चेंज हो। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी जी सेम होगी, μ1 इज इक्वल टू μ2 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी, दैन लाइट विल गो स्ट्रेट। लाइट को नहीं पता चलेगा कि इतने मीडियम चेंज होया, ठीक है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दिए, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों मीडियम के सेम है, फॉर लाइट इट इज 1 मीडियम, नॉट अ 2 मीडियम, नॉट 2 मीडियम्स, ठीक है ना। सो लाइट विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हुण आओ इत्थे मैथमैटिकल ट्रीटमेंट ते देखो, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, असी फॉर्मूला लगाया, साडे को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। फर्स्ट मीडियम च लगाओगे μ1 इज इक्वल टू C/V1, बिकॉज V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। सैकेंड मीडियम च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाओ, μ2 इज इक्वल टू C/V2 आ जाएगा। हुण दोनों की रेशो लै लो, μ2/μ1 इज इक्वल टू, ठीक है, जो असीं लवांगे रेशो दिस बाय दिस करांगे तो V1/V2 आएगा, कट करके कैंसल करके, ठीक है, C नाल C कैंसल हो जाएगा, V1/V2 आ जाएगा। ए बेटा किदे बराबर, μ2/μ1, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1, मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1। सो इनू आपां डिनोट करदे किस सिंबल नाल, μ2/1, जिहदे विद रिस्पैक्ट टू लैना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उहनूं पहलां लिखना अगले पासे। ये गल नोटेशन चेता रखनी, इहनूं उल्टा करोगे गलत हो जाना। μ2/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1, जिहदे विद रिस्पैक्ट टू लैना उहनूं अगले पासे लिया के लिखना, ठीक है। सो ये साडे कोल की हैगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1, ठीक है, दैट इज V1/V2, ठीक है। जो रेशो लैनी वेलोसिटी, ये किहदे बराबर आ रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1, ठीक है। ये आ रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू V1/V2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हैगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हैगा, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1। ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिकॉज ये आप विद रिस्पैक्ट टू वैक्यूम ले हुए, क्लीयर, ए विद रिस्पैक्ट टू वैक्यूम ले ऊपर ले दो। ए साडे कोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1 है, क्लीयर, इज इट क्लीयर, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है ना। सो नैक्सट देखो बेटा की है, हुण सानू पता है, असीं इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव च पढ़िया कि V इज इक्वल टू F लैम्बडा हुंदा है, ठीक है ना।
v स्पीड जिहड़ी हुंदी है, ठीक है, वेव दी, दैट इज इक्वल टू फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ। v ते लैम्बडा जिहड़े मीडियम दियां प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम डिसाइड करता है, मीडियम किदां दा है, उहदी ऑप्टिकल डेंसिटी किदां दी है, वो डिसाइड करेगी वट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड लैम्बडा विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय दैट मीडियम, ठीक है। ये मीडियम ते डिपेंड करते हैं, वेवलेंथ ते वेलोसिटी, ठीक है, मीडियम ते डिपेंड करती है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सो फ्रीकुएंसी जिहड़ी है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है, ये बेटा मीडियम के नाल चेंज नहीं जी होंदी। फ्रीकुएंसी सोर्स ते डिपेंड करती है, जेड़ा सोर्स इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नू पैदा कर रहा, लाइट नू पैदा कर रहा, जिथों लाइट आ रही है, ठीक है, उस ते डिपेंड करती है फ्रीकुएंसी एफ। ये गल का ख्याल रखना। हुण देखो ν1 2 मीनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू ν2 बाय ν1 आप ऑलरेडी किया, इज इक्वल टू v1 बाय v2। v1 बाय v2, v1 नू की लिख सकते हो f लैम्बडा 1, v2 नू की लिख सकते हो f लैम्बडा 2। f दोनों जगह क्यों आया, क्योंकि f जेड़ा मीडियम चेंज होने नाल चेंज नहीं होएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली सोर्स, ठीक है ना। सो देखो लाइट इधरों आ रही है, इधर जा रही, दूजे मीडियम से, इतने वेलोसिटी v1 है, इतने वेलोसिटी v2 है, इतने लैम्बडा 1 वेवलेंथ है, इतने लैम्बडा 2 है, पर फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम की रहेगी सेम, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द वेव, ठीक है। देखो इतने एग्जाम्पल की लै रहे हैं आप, इसका मतलब देखो न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये सारा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिहदे विद रिस्पेक्ट टू पहला लिखना है अगले पासे लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जेडे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा असीं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेने, मैं ऑलरेडी दस चुका है। सो दिस इज Vg, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। क्लीयर, ठीक है। सो ये गल दा असीं ख्याल रखना, ठीक है। चलो नैक्सट बेटा साडे कोल हैगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज इंसिडेंट रे, आ इंसिडेंट रे हैगी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आ एंगल ऑफ इंसिडेंस हुंदा है, आ नॉर्मल हुंदा साडे कोल डॉटेड जेड़ा नॉर्मल हुंदा है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। वो कहता इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in same plane at the point of incidence, this is point of incidence। आ इंटरफेस है ना साडे कोल, जिथे मीडियम चेंज कर रहा लाइन में हमारी इंटरफेस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिर आ हो गया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दीज ऑल थ्री थिंग्स, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखो पेपर के प्लेन च लाई कर रही है, मतलब ये नहीं भी इंसिडेंट रे पेपर के प्लेन च आ रही है, नॉर्मल भी पेपर के प्लेन च आते, रिफ्रैक्टेड रे बाहर आ जाएगी, बाहर नहीं आएगी, इट विल ऑल्सो गो इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। फर्स्ट लॉ इज दिस। सेकंड लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल लॉ। आ मान लो साडे कोल एक इंटरफेस है, यह मीडियम 1 है ऊपर, मीडियम 2 है नीचे, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 है, ठीक है। सो की है देखो असी नॉर्मल 1 ड्रॉ किया पहला, ठीक है, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल, दिस इज सैकेंड नॉर्मल, दिस इज थर्ड नॉर्मल। फर्स्ट केस दे विच की कीता उन्होंने I1 इंसीडेंस, एंगल ऑफ इंसीडेंस I1 रख के ना, ठीक है, लाइट नू इंसीडेंट कराया इस पॉइंट ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनया R1। सैकेंड केस I1 तो थोड़ा वधा के एंगल I2, एंगल ऑफ इंसीडेंस I2 थोड़ा वधा के ते उन्हें कराया ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनया R2। थर्ड केस च उन्होंने I3 एंगल जो एंगल ऑफ इंसीडेंस होर थोड़ा वधा के किया, ठीक है, इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनया साडे कोल R3 बने, ठीक है। तिना केसिस च रिफ्रैक्शन होया, ठीक है। फिर काफ़ी ये उत्ते रिसर्च वर्क चलिया कि इन्हां च रिलेशन की है आई ते आर दे विच, बेसिकली एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन च रिलेशन की है। फिर करते करते कैलकुलेशन जां, ठीक है, फार्मूले लगाते पता चलिया कि साइन अगर आप, ठीक है, आ देखो आ सेम मीडियम गिवन, मीडियम 1 ते 2, मीडियम का जो पेयर है वो गिवन, मीडियम नहीं आप चेंज किए, मीडियम 1 लिया तो मीडियम 2 पेयर लिया आप, ठीक है। सो ये हुण की है बेटा देखो उन्होंने की किया, साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 कैलकुलेट किया, ठीक है। सो नैक्सट साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2 कैलकुलेट किया। नैक्सट उन्होंने साइन ऑफ I3 बाय साइन ऑफ R3 रेशो कैलकुलेट कीतियां किदियां, एंगल ऑफ इंसीडेंस दे साइन दी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे साइन नाल। देखो साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ हर केस दे विच साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो कैलकुलेट की गई तो की देखा गया कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया दिस रेशो वाज कांस्टेंट, एक रेशो की आई कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो जो एंगल ऑफ इंसीडेंस चेंज करते ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होंदा सीगा, ठीक है ना, चेंज होंदा सी, ठीक है, पर जो उन्होंने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर केस च कढ़िया तो हर केस च और रेशो एदी वैल्यू एस रेशो की वैल्यू की आई सेम आई, कांस्टेंट आई। ठीक है, दिस वाज स्नेल्स लॉ। ठीक है, पर कंडीशन की है कि मीडियम का पेयर जो सारे केसिस च सेम हो, ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, सो हुण देखो साइन आई बाय साइन आर ते होर की देखा गया कि ये जी बेटा साइन आई बाय साइन आर की रेशो आ रही सी स्नेल्स लॉ दे विच, दिस वाज इक्वल्स टू एक आदे इक्वल सी एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, रेशो ऑफ एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये बराबर साडे कोले, ठीक है, रेशो साइन आई बाय साइन आर दी आई। ठीक है, सो इनू याद रखने का तरीका की है सिंपल कि न्यू वन इंटू साइन, इनू इक्वेशन ए वाली इक्वेशन ना इस फॉर्म च लिख लो, न्यू वन इत्थे लै जाओ, न्यू वन इंटू साइन आई, न्यू टू इंटू साइन आर। देखो इधर न्यू वन एंगल ऑफ इंसीडेंस इधर बन रहा है, न्यू वन नू इहदे साइन नाल मल्टीप्लाई कर दो, न्यू टू नू इहदे साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन नाल मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। ठीक है, न्यू वन साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू टू साइन आर, बाद न्यू टू नू न्यू वन नू इधर लै जाओ, साइन आई बाय साइन आर इधर लै जाओ, तुहानू याद रहेगा। आ इक्वेशन नू याद करने का तरीका है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो इन दिस लेक्चर वी आर डूइंग अप टू दिस, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ एंड द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।